Hello children, welcome to class 1 computers children. In our previous video, we were doing chapter 4, that is places where computers are used. So children, chapter 4, places where computers are used. So children, we had completed the chapter, and in this chapter we studied about different places where computers are used. So children, let us revise the chapter and start our book exercise. So children, in this chapter we studied that nowadays computer has become part of our life, and wherever we see we can find computers doing one or the other task. तो बच्चों, आजकल हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, कोई भी काम देखते हैं, सब कंप्यूटर के थ्रू होता है। चाहे वो छोटी सी शॉप हो, स्कूल हो, घर हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, या फिर आप लोगों के फादर का ऑफिस हो, हर जगह जो भी काम होता है, इट इज़ डन यूजिंग द कंप्यूटर. सो in this chapter we have studied all the places where we can see the computer or we can find computer. So let us see children. So children, first place, as we know, we studied that in schools we use computer for various tasks, doing various tasks. For example, preparing result, making question papers, keeping record of the employees as well as the students. And then we have computers in library also. For in the library we have many books. For keeping the record of those books also we have. After school, at home also we need computers. At home children, we do different types of tasks. For example, we do homework, we do internet surfing, we attend classes, and then your mothers also use the computer for one or the other tasks. For example, for our school purpose also we send and receive mails. हम स्कूल का होमवर्क भेजते हैं मेल के थ्रू, और कुछ भी स्कूल से होमवर्क हमारे लिए आता है वो भी मेल के थ्रू हम रिसीव करते हैं. फिर कंप्यूटर्स को यूज़ करके हम गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं. सो एट होम ऑल्सो वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर वेरियस टास्क. देन ऑफिसेस चिल्ड्रन, इन द ऑफिसेस पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर doing making documents, sending and receiving mails, keeping record of the employees working in the particular office. So in the offices also we have lot of work to do in computer, using the computer. फिर shops also we keep the record of the stock. Then we make bill, we print bill out of the computer. So in small or big shops also we are using computers. Then computer is used at hospitals also. In hospital also, doctors use computer for diagnosing the diseases, and they use computer for keeping the record of the patients visiting to the hospital. They also prepare medical report using the computer. Then children, in banks also we use computer for different tasks. For example, in bank we keep the record of the customers coming in the bank. For money transaction also we need computers, और for withdrawing money also we need computer. तो जो भी काम बैंक में होते हैं वहाँ पे भी हम कंप्यूटर को यूज़ करके सारे काम को करते हैं. फिर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में चिल्ड्रन वी गो फॉर रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, इंक्वायरी, जो भी करना आजकल हम कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे कर सकते हैं. अब हमें लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है, और घंटों हमें भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, हमारा समय भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल सभी लोग बिजी हैं. एवरीबडी इज हैविंग लॉट ऑफ वर्क टू डू. तो इसीलिए किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों लाइन में खड़ा होकर के काम करे. आप देख सकते हो कि आजकल हम ऑनलाइन जा कर के फटाफट रिजर्वेशन करा देते हैं. अगर हमें कैंसिलेशन कराना है वो भी करा देते हैं. उसके बाद हमें इंक्वायरी करनी है, स्टेशन जा कर के हमें ट्रेन का वेट करने की ज़रूरत नहीं, हम घर बैठे पता कर लेते कि ट्रेन लेट है या टाइम में है. इससे हमें स्टेशन पे बैठ के वेट भी नहीं करना पड़ता. सो चिल्ड्रन, वंस अगेन वी कैन से कंप्यूटर हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जैसे हर छोटी बड़ी चीज़ें हमारे घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको के बिना हमारा लाइफ संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है, उसी तरह कंप्यूटर हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ.
कंप्यूटर एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। बाकी हमारे घर में बहुत सारी मशीनें होती है, लेकिन सब इतने सारे काम नहीं करती जैसे कि कंप्यूटर करता है। तो सुबह से लेकर रात तक हर एक मेंबर फैमिली का जो होता है किसी न किसी तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, भले वो मोबाइल के थ्रू यूज़ करता हो, लैपटॉप के थ्रू यूज़ करता हो, कोई काम करता हो, या किसी और कंप्यूटर डेस्कटॉप के थ्रू करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में आती हैं और इन सबको हम किसी न किसी काम के लिए पूरे दिन यूज़ करते हैं। मोबाइल को बात करने के लिए यूज़ करते हैं, मैसेजेस भेजने के लिए करते हैं, मोबाइल से क्लास करते हैं, और उसके बाद मोबाइल से मेल सेंड और रिसीव करते हैं। तो किसी न किसी फॉर्म में हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी से कंप्यूटर्स हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So children, all these were the places where we can find computer, and we have understood what all we can do using these computers. So I hope you have understood the chapter. After reading the chapter, children, let us find out how much you have understood. Self evaluation. आपके चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर में कुछ पॉइंट्स होते हैं which are important and you should know those points. So these points are, we are going to read under the topic self evaluation. Self evaluation. So children, in self-evaluation, what we study, let us find out how much we have understood. So I know that, I-K-N-O-W, know, T-H-A-T, that, I know that computers help, H-E-L-P, help, in schools, homes, shops, hospitals, banks, and offices. O-F-F-I-C-E-S, offices. So children, these are the places where we can find computer, and these at these places computer help us in one or the other way. So children, I know that after reading the chapter, I know that, what do I know? I know that computers help in schools, homes, shops, hospitals, bank and offices. So पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट schools, hospitals, bank, then we have shops, homes, for different types of work, for doing different tasks. So चाहे वो स्कूल हो, घर हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, ऑफिसेज हो, हर जगह हम कंप्यूटर को किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, किसी न किसी टास्क करने के लिए यूज़ करते हैं. सो हियर चिल्ड्रन, these are the places where we can see the use of computer. Then second point is children, as you can see in the book, I know that computers are used at railway, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस टू. इनके अलावा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी यू कैन सी at airport and railway station also. Airport and railway station also you can see computers. So children, these are the places where we studied in the chapter also that we can use computers. So all these places we do different types of work and using the computer. So these are the places in the chapter also we studied that we have computers. तो हर जगह पे अलग अलग काम होता है और हर जगह पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. So children, we agree with both the points and you will put a tick in the box in front under the agree. Now children, this is all with the chapter. Let us go through the chapter and write some difficult words and understand learn their spellings.
अब चैप्टर में खत्म कर दिया है. We will write some difficult words from the chapter and learn the spellings. So children, here we have some difficult words. Difficult words. First point is record, R-E-C-O-R-D-S, records. Then second one is children, preparing, P-R-E-P-A-R-I-N-G, preparing. Third word is children, then we have collected, C-O-L-L-E-C-T-I-N-G, collecting. चलो collecting लिखा, या you can write collected also, ed, collected. Records, preparing, collected. Four we have, turn the page children. Then we have surfing. We have S-U-R-F-I-N-G, surfing. Then we have L-I-S-T-E-N-I-N-G, listening. Then we have sixth one, we have internet. N-E-T, net. We have internet. Then we have typing, T-Y-P-I-N-G, typing. 8 we have printing, P-R-I-N-T-I-N-G, printing. Then 9 we have storing, S-T-O-R-I-N-G, storing. Then 10 we have sending, S-E-N-D-I-N-G, sending. 11 we have receiving, receiving. 12 we have messages, M-E-S-S-A-G-E-S, messages. 13 we have stock, S-T-O-C-K, stock. 14 में हमारे पास है diagnose, D-I-A-G-O-N-O-S-E, diagnose. 15 में हमारे पास है diseases. Then we have 16 depositing, and 17 we have withdraw, with D-R-A-W-I-N-G, withdrawing. So these are some, and let us understand these, then we'll write some more children. There are many words which are quite difficult for you. Say records. As I told you children, in the offices we need to keep record of the एम्प्लॉयज़, मतलब जो लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं, चाहे स्कूल में काम करने वाले, चाहे ऑफिस में काम करने वाले, किसी भी शॉप में काम करने वाले. तो हम कहीं पे काम करते हैं तो हम वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं. तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी हम काम करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. चाहे आप कहीं पे भी जॉब करें, चाहे आप स्कूल में जॉब करें या कहीं पे भी जॉब करें, तो आप या स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं तो सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो RECORD, रिकॉर्ड, ये है RECORDS, रिकॉर्ड्स. PREPARING, preparing, तैयार करना. If you are in a school children, you need to give exams. For giving exams, teachers prepare question paper, and these question papers उसको तैयार करने को हम preparing कहते हैं. PREPARING, preparing. So you get printed paper. That printed paper is typed on the computer and it is printed through the printer. Printer को use करके हम paper पे उसे print करते हैं. So here PREPARING, printing.
कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड यानी इकट्ठा करना, कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड। उसके बाद है सर्फिंग, SURFING, सर्फिंग। चिल्ड्रन, इफ यू गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्फिंग। हम इंटरनेट के थ्रू अगर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, कोई भी हमें डाउट है, हम उसे ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो उसे हम इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। तो SURFING, सर्फिंग। उसके बाद लिसनिंग, लिसनिंग मतलब टू हियर, सुनना, LISTENING, लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। उसके बाद है इंटरनेट, इंटरनेट चिल्ड्रन को यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बिना इंटरनेट के हम वो सारी चीज़ें जो कि सर्च इंजन पे अपलोडेड है, मतलब सर्च इंजन के थ्रू जिस चीज़ों को हम देखते हैं या करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट रहेगा तो ही हम अपने कंप्यूटर से मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। तो INTERNET, इंटरनेट, TYPING, टाइपिंग यानी लिखना, कंप्यूटर पे लिखने को हम टाइपिंग कहते हैं। PRINTING, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटर के को यूज़ करके छापना, जिसे हम कहते हैं। प्रिंटर को जो भी हमें कंप्यूटर में हम करते हैं, उस सभी चीज़ को हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, यू कैन सी इट ऑन द मॉनिटर। लेकिन अगर हम उसे पेपर पे चाहिए तो हम प्रिंटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, तो उसे प्रिंट करना कहते हैं। गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड प्रिंटिंग। उसके बाद स्टोरिंग, स्टोरिंग मतलब कोई भी काम करने के बाद उसको हम डिलीट या रिमूव तो कर नहीं देते, उसे संभाल के रखना, स्टोर करके रखते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू हम चीज़ों को फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव करके रख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं ना। सेंडिंग, सेंडिंग मतलब भेजना, हम मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। हम दूसरों को मेल भेजते हैं और दूसरों के मेल को रिसीव करते हैं। तो SENDING, सेंडिंग। RECEIVING, रिसीविंग। मैसेज, MESSAGES, मैसेजेस यानी कि सूचना, मैसेज मतलब सूचना। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है जितने भी सामान शॉप में हम लाते हैं बेचने के लिए, वो स्टॉक हो गया। किसी भी सामान, किसी भी शॉप में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लेन देन का काम हो रहा है, तो जो भी सामान खरीद के आ रहा है और फिर उसको हम बेचते हैं, तो जो भी सामान दुकान में पड़ा हुआ है वो शॉप का स्टॉक है, तो दैट इज स्टॉक। डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब होता है टू फाइंड आउट, किसी चीज़ को पता करना। अब डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? हमको कोई परेशानी होती है, हम अपनी परेशानी बताते हैं, डॉक्टर हमारी में क्या हुआ है उस समस्या को पता करता है, कोई बीमारी हुई है या जो जो हम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस पता करता है कि हमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उसे हम डायग्नोस करना, किसी चीज़ को पता करना या फाइंड आउट, टू फाइंड आउट इज कॉल्ड डायग्नोस। डिजीज, डिसीजेज मतलब कि बीमारी, DISEASES, बीमारी। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पे बीमारी को डायग्नोस करना, बीमारी को पता करना इस डायग्नोस। और बीमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है या फिर किसी भी तरह का की परेशानी है, उसे हम डिसीज़ कहते हैं। उसके बाद डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग का मतलब होता है जमा करना। अब बैंक इसलिए होता है अपने पैसों को सेफली वहाँ पे रखने के लिए। तो आप बैंक में जाते हैं, बैंक में हम बहुत सारे काम करने के लिए जाते हैं। हम पैसे को डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, अपना अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, और उसके बाद किसी को ट्रांसफ़र मनी करना है तब जाते हैं, DD बनवाना है मतलब कोई ड्राफ्ट बनवाना है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, फीस डिपॉजिट करने के लिए हम जाते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं बैंक में, उनमें से एक है डिपॉजिटिंग, पैसे को जमा करने के लिए भी हम जाते हैं। पैसे जमा करने को हम डिपॉजिट करना कहते हैं। जिस तरह से फीस जमा करना डिपॉजिट कहलाता है, उसी तरह से यहाँ पे हम पैसे को भी डिपॉजिट करने जाते हैं ताकि हम अपने घर में ज़्यादा पैसे ना रख सकें और उसके बाद हमारी लाइफ सेफ रहे और जो हमारे वैल्यूएबल्स हैं, पैसे हैं, वो भी सेफली कहीं पड़ा रहे। तो इसलिए हम बैंक में उसे रखते हैं। विदड्रॉइंग, विदड्रॉइंग मतलब टू रिमूव। अब हमने अपने अकाउंट में पैसे हर महीने का जमा कर होता जाता है, यानी सैलरी भी हमारे अकाउंट में आती है। तो हर महीने हमको जब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते तो वी गो टू द बैंक एंड विदड्रॉ द मनी। एंड आजकल नाउअडेज इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू विदड्रॉ द मनी थ्रू ATM। आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, ऑनलाइन ही पे कर देते हैं, पैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ
डूइंग ट्रांजैक्शन, लेन देन करने का बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक है जब भी हमको खर्च के लिए चाहिए होता है कहीं ना कहीं तो हमें भाई पैसे देने पड़ते हैं, तो हम विड्रॉ करते हैं, तो एटीएम के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं। द ईजियर वे इज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। तो लेट अस रीड वंस अगेन चिल्ड्रन। रिकॉर्ड्स, RECORDS, रिकॉर्ड्स, PREPARING, preparing, COLLECTED, 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 SURFING, surfing, LISTENNING, listening, सुनना, NITERNET, internet, TYPING, 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 PRINTING, 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 STORING, 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 SENDING, 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 RECEIVING, receiving, MESSAGES, messages, STOCK, stock, DIAGONOSE, diagnose, DISEASES, diseases, DEPOSITING, depositing, then WITHDRAWING, withdrawing. So these are some of the words, children. Let us move further into the chapter. Learn these words. और कुछ और words है, let us write and understand. Then here we have next one is okay. So here 17, 18. 18th word is patient. PATIENTS, patients. So patients visit to the hospital. वो लोग जो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उनको हम पेशेंट कहते हैं. द वंस हु गो टू द हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक और इल, तो उसे हम पेशेंट कहते हैं. देन वी हैव रिजर्वेशन, RESER, reserving, ING. Then 20 we have ticket, 20 we have tickets, 21 we have passenger, PASSENGERS, passengers. So children, these are some of the words which were left. Patient, the one who goes to the hospital or to the doctor in case he is not well or he is sick or he is ill. और रिजर्वेशन, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम रिजर्वेशन करवाते हैं. ये रिजर्विंग यानी अपनी टिकट फिक्स कराना, अपनी सीट फिक्स कराना. तो उसके लिए जब भी हम ट्रेन से या हमको कहीं बाहर जाना है तो हम ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से, अदरवाइज अगर हमको प्लेन से जाना है तो प्लेन का रिजर्वेशन कराते हैं और उसे हम रिजर्विंग कहते हैं. RESERVING. जिस भी व्हीकल से जा रहे हैं उसमें अपने लिए एक सीट फिक्स करना, उसे हम रिजर्विंग कहते हैं. उसके बाद टिकट, TICKETS, टिकट्स. टिकट्स का मतलब है कि जो हमने अपनी रिजर्वेशन कराई है या फिर अपने लिए सीट रिजर्व करा है, उसके लिए एक टिकट मिलता है जिससे पता चलता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर सीट इज़ माइन. उस पर सीट नंबर लिखा होता है, हमारा डिटेल होता है, वेदर वी आर करेक्ट पर्सन और नॉट. तो ये प्रूफ के लिए कि हमने टिकट रिजर्वेशन कराया है. और इन केस हम आके सीट ऑक्यूपाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें एक प्रूफ के फॉर्म में एक टिकट मिलता है, एक कार्ड मिलता है जिसको हम टिकट कहते हैं. ठीक है, पेपर के फॉर्म में होता है, आजकल ई टिकट हो गया है जो हमारे मेल पे आता है या फिर हम अपने मोबाइल पे उसकी कॉपी रखते हैं. उसके बाद पैसेंजर्स आर द वन हु ट्रेवल इन द ट्रेन और द एयरपोर्ट. जो भी ट्रेन और एयरपोर्ट से एरोप्लेन से सफ़र करता है या जर्नी करता है उसको हम पैसेंजर कहते हैं. सो चिल्ड्रन, PASSENGER, पैसेंजर्स. पेशेंट्स यानी बीमार. रिजर्विंग, किसी चीज़ को रिजर्व कराना, फिक्स करना. TICKETS, टिकट्स.
passenger, P-A-S-S-E-N-G-E-R-S, passengers. So these are the words which we came across in the chapter, and I hope you all must have understood. So children, इसके बाद we will do our first exercise given in the book, that is pick the correct option. Exercises EXERCISES, exercises. Exercises में हमारे पास है A, we have A, TICK, tick, correct option या आंसर, ANSWER, आंसर. अब हमारे पास फर्स्ट आंसर है एट, क्वेश्चन है स्कूल, एट स्कूल, एट डैश computers are used for preparing, PREPARING, preparing exam result. Where do we prepare exam result, children? A, where do we prepare exam result? We prepare exam results in the school. B, office, and C, bank. C is BANK, bank. So children, where do we prepare exam result? Where do we prepare exam result? We prepare. So children, first question is at dash computers are used for preparing exam result. So children, where do we prepare exam result? हम exam result कहाँ prepare करते हैं? जहाँ पे exams होते हैं. कहाँ पे exams होते हैं? Exams स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या बैंक में होते हैं. कहाँ एग्जाम्स होते हैं? एग्जाम्स आर हेल्ड इन स्कूल्स. दैट इज वाई वी प्रिपेयर एग्जाम रिजल्ट्स इन द स्कूल. जहाँ एग्जाम होंगे वहीं पे हम रिजल्ट बनाएंगे. सो वी प्रिपेयर एग्जाम रिजल्ट्स इन स्कूल. सो हियर यू विल राइट SCHOOL, स्कूल. एट स्कूल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एग्जाम रिजल्ट. स्कूल में हम एग्जाम रिजल्ट बनाते हैं. तो SCHOOL, स्कूल, preparing exam result. We use computers in the school for preparing exam result. So children, जहाँ एग्जाम होगा वहीं पे रिजल्ट बनेगा. ऑफिस में या घर पे तो एग्जाम होता नहीं है, ना हॉस्पिटल में ना बैंक्स में होते हैं. एग्जाम स्कूल्स में होते हैं. दैट इज वाई वी प्रिपेयर एग्जाम रिजल्ट्स इन स्कूल्स. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट शॉप. Second question is at shop, SHOP, shop. At shop, a computer. At shop, a computer helps in dash bills. What do we do at shop using the computer? At shop, a computer helps in dash bills. So options are, children, first option is PLAYING, playing. Second is B is drawing, DRAWING, drawing. Thirdly, we have painting. C we have PAINTING, painting. So children, as we know, here we have three options. First is at shops a computer helps in dash bills, playing, drawing or painting. What do we do with bills, children? We play with, printing, not painting, printing, PRINTING, printing. So at shop a computer helps in printing bill, not playing. Playing is wrong, drawing is wrong,
printing. At shops, a computer helps in printing. You will write here Printing, printing bills. At shop, computers help in printing bills. When we purchase something from a shop, the computers are used for printing the bill. So here we need a computer to print the bill. In shops, we need a computer to print a bill. Now last question of question number 1, children. Last one is 3. At railway station, at RAILWAY, railway station. At railway station, computers, COMPUTERS, computers help in booking, BOOKING, booking. First is A, fees, FEES, fees. B is ticket, TICKETS, tickets. Then C is recording, RECORDING, recording. So at railway station, what do we do with computer, children? At railway station, computers help in booking, fees, टिकट्स और रिकॉर्डिंग. फीस रेलवे स्टेशन में हम डिपॉजिट नहीं करते, तो वी गो फॉर टिकट्स. सो एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग टिकट्स. सो ये यू विल राइट TICKET, टिकट्स, एंड हियर यू विल पुट अ टिक, दैट इज टिकट्स. सो एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग टिकट्स. रेलवे स्टेशन में वी यूज कंप्यूटर्स फॉर बुकिंग द tickets. So children, here we have completed question number 1. We have done some spellings. Go through the spellings, learn the spellings, and learn these questions also. First question which we have done today, that is question number A. Learn these questions also. We will meet once again in our next video, children. Till then, thank you.